So, good afternoon, namaskar, and welcome all of you to another edition of our webinars in the series Illness to Wellness. And today's topic, a very important topic, is caring of liver, prevention of liver diseases, and if they have set in, then management. How better we can look after and care for liver, which is an extremely important organ in our body. Now, a few words about the Illness to Wellness initiative. It is an initiative taken up by SOCHM, and it is uh, usually we have with us Shri Anil Rajputji, who is the chairperson of the CSR Council of SOCHM, and it is his initiative. He is following through with it. Since more than past 5 years, we've been conducting programs, health awareness programs in communities, in societies, in offices, and screening people for diabetes, hypertension, thyroid disease, and other common lifestyle diseases, creating awareness about these, about obesity, about hyperlipidemia. And we have had doctors who've conducted sessions, awareness sessions, given guidance and consultation to people, a whole team of lifestyle counselors, of dietitians. So we had been carrying on these activities under the Illness to Wellness banner before the onset of COVID. But since the onset of COVID, unfortunately, we could not move out in the communities. So we shifted over to this virtual platform. And since then, we have been conducting webinars on various topics of importance to our members of society. And we have been lucky enough since these past 2 years to have conducted health awareness programs on almost most of the important topics of concern to our viewers and society. And we've had uh, one of the best minds from the field of medicine. Our faculties have been renowned national and international specialists. Just as we have today, we are very lucky to have with us uh, Padma Bhushan Professor Dr. Shiv Kumar Sareen. He's a senior professor, Department of Hepatology, and he's also Director, Institute of Liver and Biliary Sciences, New Delhi. We would like to thank you and welcome you, sir. And we would also like to welcome Dr. Kapil Dev Jamwal. He is the head of Unit 2 Gastroenterology in Artemis Hospital, Gurugram. Gurugram. So thank you for sparing your time and joining us in this important discussion on liver and its care and management. So liver, I don't think we need to say anything about liver. Since time immemorial, liver has been considered to be a very, very important organ of our body. Even when we did not have much understanding about the physiology, uh, but liver was still considered to be, as Galen said, the seat of fire. And so is the same. I was very surprised when I was reading, when I was preparing for this program. So I thought I would just look up the ancient literatures and how our ancient earlier doctors have been relating to liver. So one commonality which I found was both in Ayurveda and in ancient, the so-called modern medicine, is that liver was considered to be the seat of fire. So is there some reason for it? Dr. Kapil, is there some reason that liver was considered to be associated with fire and hot or warmth? You are muted. Would you please unmute yourself? Thank you, Dr. Kesri, for the opportunity, and I will thank the SOCIM for the opportunity. And with my mentor and my guide, Dr. Sareen has been my mentor and guide. So it's a privilege for me to be on the same panel as with my guide. Regarding coming to a question, so basically, liver you can say is the largest organ of the body. It receives all the blood supply of the gut. So most of the blood supply of the gut has to go through liver. So that's why anything we eat
any drug we take, anything which goes to our GIT has to, or any drug which is given to a drug, or any substance which is given to a drug, it is metabolized through liver. So that's why anything which happens to any part of the body, liver is the most first of the organ which metabolizes or synthesizes it. So that's why it's very important organ. You can say it is a factory of metabolism of whole body. Liver predicts what disease can occur. So we will discuss in the further discussion when we go around that if patient has fatty liver, so that can predict patient will develop cardiac disease or other metabolic diseases in the body. So liver is very important organ. That's why it has a seat of excellence, since in all the sciences of all the methods of whether it's allopathy or whether it's a homeopathy or it's a Ayurveda, all have given liver a due consideration because of its so many diverse functions. So definitely, thank you, sir. Thank you, Dr. Kapil. So this is why today's discussion becomes even more important, because there's hardly any organ, and there's literally hardly any disease which in some way or not or the other is not associated with liver. Liver is one of the biggest factories, chemical factories in our body. It is working 24 hours. It is breaking down things. It is making up. It is synthesizing. So it's doing almost literally everything that a big chemical factory in our world does. So that was a very nice brief introduction. Thank you. And let me see if we have Dr. Professor Sayin sir with us. Anyway, let's continue with the discussion. So, tell us about some common symptoms of liver disease, because I think this is one thing which we want our viewers to understand, and later on we'll start talking about the disease in particular. What common symptoms could be there? Because liver is such an organ that even though it is working all the time, but we don't feel any of it. It's working. We literally cannot feel it. But how can a person understand that there's something wrong with the liver? Yeah. So basically, the symptoms of you can say when the patient has no or liver disease, symptoms can be very generalized or broad. Like patient can have symptoms of flatulence, or maybe dyspepsia, that is bloating in the upper abdominal symptoms, and or patient can have symptoms of indigestion, what commonly people complain when the liver enlarges, like in fatty liver, because the capsule stretches, so patient can complain that the liver because lies on the right side of the upper stomach, so they can complain that there is heaviness when they move, or they can feel heaviness when they are sitting and breathing heavily. So that can be, as the disease advances or patient starts developing liver disease, so symptoms can develop in form of, they can develop jaundice, they can develop features like ascites, they can develop upper GI bleed, and altered sensorium. So that depends upon what stage of disease are there. Mostly in the general population, the symptoms can be non-specific, like I already explained to you. So that can be. So it depends upon what stage of disease patient is, but mostly patients may not see, because that's why it's called it's silent disease, because the patient when is diagnosed with liver disease, already it has crossed that stage that symptoms may occur. So when we're talking of symptoms, one thing which I have understood since very initial MBBS and practice days is that people associate liver disease with jaundice. Yep. So if they have jaundice, they understand that there's something wrong in the liver. Yep. So, but jaundice, people say that मुझे jaundice हो गया है. So, I mean, jaundice, what is jaundice? Is it a disease, or it can be because of many reasons? How to understand this, sir? Jaundice basically in simply terms means the yellowness of eyes and the body and the secretions. So jaundice can be, what you can say is a acute illness, that means short history, that could be because of infections, drugs, or any other chemicals which can cause. And jaundice can be a manifestation of prolonged disease, like when patient develops a chronic liver disease and the disease becomes advanced. So it is known as types of hepatocellular jaundice. Then the jaundice can be which is non-related to liver, which can be due to because of indirect hyperbilirubinemia, that patients have some problem in the blood,
and the hemoglobin is not synthesized properly. So in those conditions, the bilirubin increases, but it is indirect hyperbilirubinemia. So it is called indirect hyperbilirubinemia, and patient presents with jaundice because eyes turns yellow, but the urine will not be turned yellow. And the third and the most important cause is obstructive jaundice, in which the bile ducts are obstructed, and which could be due to the most common cause in our subcontinent is stones, and the second other causes could be a cancer, which is seen in advanced stage. So these are the causes: direct, indirect, and obstructive jaundice are the most common causes of jaundice. Okay, thank you, sir. So, what is the most common cause of jaundice in our country? Well, it happens in children also, it happens in adults. I mean, and you very frequently see, and at times we tell people that don't worry, ये तो ठीक हो जाएगा, ये 10-15 में अपने आप ठीक हो जाता है. Yes. So is it always that it is a mild disease, or what is the reason for that? So as you discussed and told, the most common cause of jaundice is viral hepatitis, and mostly it is hepatitis A, which is predominant in children less than 18 years, and hepatitis E, which can be seen in both adults and children. So 95% it is a self-limiting disease, and patients complain of jaundice, which settles by its own, whatever you say. In 5%, they can develop a complicated jaundice, which patient may go into liver failure, other symptoms of liver disease, or they can get recurrent jaundice in hepatitis A. But the most common cause, as you discussed, is hepatitis A and E. Thank you, thank you. So I think there are some hepatitises. We'll come back to them later. But since Professor Sain sir has joined, sir, there's a question for you that almost I think every second patient that I see in my practice, or literally every patient I would say I see in my practice, जब भी उनका अल्ट्रासाउंड होके आता है, they have fatty liver. जब भी LFT कराते हैं, उनके एंजाइम थोड़े तो बड़े ही होते हैं. So sir, what is the significance of this fatty liver? Thank you, Rajesh, and calling me on this. And I'm so happy to join my colleague, Dr. Kapil, a brilliant gastroenterologist. जो फैटी लिवर का मुद्दा है वो बहुत कॉमन है और लोग इसको इग्नोर करते हैं, पर दो पार्ट हैं. आपने अल्ट्रासाउंड कराया और लिवर में फैट आई, और आपने ब्लड टेस्ट कराया और आपका SGOT-PT बढ़ा हुआ आया, और तीसरा आपने ब्लड टेस्ट कराया, आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आया. ये तीन सिनेरियो हैं. तो अगर लिवर में फैट है अल्ट्रासाउंड में, तो ये चिंता का कारण है. जिसके लिवर में आज फैट है, बाकी ठीक है, तो मान के चलें 10 से 15 साल में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है. जब अल्ट्रासाउंड में लिवर में फैट आती है तो लगभग 10 से 15% लिवर में फैट है, और कभी कभी 20% फैट हो तभी अल्ट्रासाउंड उसको पकड़ता है. तो 20% फैट बहुत ज़्यादा है. नॉर्मली 5% से कम फैट होनी चाहिए. दूसरा, लिवर के एंजाइम्स नॉर्मल होने चाहिए, पर अगर लिवर के एंजाइम्स हाई हैं, जैसे SGPT की वैल्यू 40 होती है, हम लोग ILBS में 30 रखते हैं, थोड़ा सा और मार्जिन रखते हैं. तो अगर लिवर के एंजाइम्स हाई हैं, इसका मतलब लिवर में इंजरी है. हाई एंजाइम्स का मतलब है कि कुछ सेल्स की डेथ हुई, और वो डेथ, सेल डेथ जो है वो हाई SGOT, हाई SGPT बताती है. तो हाई SGOT-PT मीन्स द फैट इज द कॉज ऑफ इंजरी एंड कॉजिंग हाई एंजाइम्स. तो वो चिंता की बात. तीसरा, अगर आप जाते हैं और अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, तो आप क्या करते हैं? तुरंत एक दवाई ले लेते हैं, खुश होते हैं, हाँ भाई कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, मेरा ट्राइग्लिसराइड नीचे आ गया. पर ये नहीं सोचते कि आया कहाँ से. तो अगर हाई कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड में है, तो इन सिंपल टर्म्स वो ओवरफ्लो है लिवर से, कि लिवर में आपका इतना फैट डिपॉजिट हो चुका है कि और अब कैपेसिटी नहीं, या आपकी जो फैटी टिश्यू है जिसे आप कहते हैं ना मेरे चर्बी, उसके अंदर इतनी फैट डिपॉजिट हो गई कि अब और नहीं हो सकती, तो वो ब्लड में घूम रही है. तो हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड मीन्स फैटी लिवर, और ये भी एक चिंता का कारण है.
तो हम इसको बड़े आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि अगर आप कहते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति या हर व्यक्ति के अंदर ये है, तो भारत में ये एक पेंडेमिक की तरह है। करीब करीब 30 से 40% लोगों में फैटी लिवर है, जो कि डिटेक्ट होता है अल्ट्रासाउंड से। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये ही झगड़े की जड़ है। चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट डिजीज़ हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे कोई नए कैंसर्स हो, उन सब का इन्फ्लेमेशन से, लिवर की फैट से ही रिश्ता है। सो मच सर। सर, हम आजकल बहुत बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की, एंड वी सी लॉट ऑफ यंग पीपल डाइंग ऑफ हार्ट अटैक्स फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। और फिर हम लोगों को एज डॉक्टर्स हम समझाते हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हैं, जैसे आपने अभी बताया कि फैटी लिवर की वजह से, या जो फैट ओवरफ्लो हो रहा है उसकी वजह से वो लिवर में डिपॉजिट होता है। बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है, जैसे एलडीएल है, वो लिवर उसको बनाता भी है। सो ऐसा भी कुछ होता है कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन द फैक्ट्री ऑफ लिवर, कि वो गलत चीजें ज्यादा बना रहा है, कि वो जो हम ऊपर से लेते हैं वही जा रही है। आपने बहुत अच्छे सवाल दिए। मैं इनको 3 भागों 4 भागों में बताऊंगा। पहला कि आपने कहा पतला दुबला आदमी है पर उसको भी लिवर में फैट है। तो ये जनरली थर्ड फोर्थ जनरेशन है, मतलब उनके पिताजी, दादाजी, नाना जी, उनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होगा। तो अगर ऐसे लोगों के घर में आप वेट बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी बीमारी हो जाएगी। पर अगर आप वेट नॉर्मल भी रखेंगे तो भी लिवर के अंदर फैट बनी रहेगी। तो ऐसे लोगों को, जो नॉर्मल या नॉर्मल से भी कम वेट वाले हैं पर लिवर में फैट है, उन लोगों को बचना हमेशा बहुत। इनमें लिवर कैंसर बहुत ज़्यादा है। कपिल का ही वर्क था कि अगर आपका लीन आदमी है पर उसके अंदर अगर फैट है तो उसमें लिवर कैंसर ज़्यादा हो सकता है। तो इसी तरीके से सेकंड चीज़ जो है, अगर उस व्यक्ति के अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, तो ये 5-6 सिंड्रोम्स होते हैं। जो फैटी लिवर में फैट जो है, जब वो ब्लड में गई तो वो आर्टरीज पे डिपॉजिट होएगी, हार्ट में डिपॉजिट होएगी, और ऐसे समय में उसको ब्लड प्रेशर है। तो अगर फैटी लिवर है तो 10 साल में उसको हो सकता है ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम। तीसरा, ऐसे लोगों की सडन डेथ हो सकती है। सडन डेथ ऐसी है कि लोगों को लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, एक्सरसाइज करते नहीं, उनको अपनी टॉलरेंस नहीं पता है। तो ये यंग एज में डेथ होना, अगर किसी के भी घर में सडन अनएक्सपेक्टेड यंग एज की डेथ है, तो मान के चलें कि कोई ना कोई मेटाबॉलिक कॉज है, और उस कॉज को निकालना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ इज़ ए लिवर डिजीज़, क्लियरली उसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के लिवर में फैट है तो इंसुलिन अंदर नहीं जा सकती, और इंसुलिन जो हमारा खाना है उसको, ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो ऐसे व्यक्ति में जिसके लिवर में फैट है, ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनेगी। हर रोज़ थोड़ी सी ज़्यादा बनी तो पैंक्रियाज धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाएगा, और उसको हम लोग कहते हैं हाँ भाई अब डायबिटीज़ हो गई। बट द बिगिनिंग इज़ फ्रॉम फैट इन द लिवर। अगर आप लिवर की फैट को घटा लें, अगर आप ये ध्यान रखें कि हाँ मेरा लिवर हेल्दी है, तो शायद डायबिटीज़ से बच सकते हैं। और जिन लोगों के लिवर में फैट है और उनके लिवर के SGOT-PT हाई हैं, उनमें तो डायबिटीज़ का रिस्क करीब करीब 5 से 10 गुना है। और ऐसा आदमी शराब पी ले तो फिर तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू सर। सो सर, ओबेसिटी का भी वजन ज्यादा होने का, बिकॉज एट टाइम्स वी हैव सीन इन आवर प्रैक्टिस कि पीपल आर ओबीज बट उनके लिवर एंजाइम्स फिर भी ठीक होते हैं, उनके शुगर लेवल भी ठीक होते हैं, उनके कभी कभी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक होते हैं। सो इसका क्या इंटरप्ले है, क्या ये भी कुछ एक बहुत बोलेंगे आप? अच्छा सवाल है। ओबेसिटी को अब आज की साइंस में दो में डिवाइड करते हैं, मेटाबॉलिकली हेल्दी और मेटाबॉलिकली अनहेल्दी ओबेसिटी। तो जो लोग फर्स्ट जनरेशन के हैं, उनमें जीन्स का ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, उन लोगों में मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबेसिटी होगी। हाँ भाई, मोटे हैं पर मेरे टेस्ट ठीक है, मोटे हैं पर मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है। तो हर मोटा आदमी बीमार नहीं है, हर मोटा आदमी दोषी नहीं है।
पर हाँ, अगर वो मोटापा अपने बच्चों में या ग्रैंड चाइल्ड में पास करेगा तो वो ग्रैंड चाइल्ड भले ही पतला भी होगा, उसका वेट उतना ज़्यादा नहीं होगा, पर वो दादाजी का या नाना जी का असर उस पर बना रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि एनवायरनमेंट का और डाइट का असर फर्स्ट जनरेशन तो टॉलरेट कर लेगी। मेरे फादर मदर बिल्कुल हेल्दी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने ज़िंदगी बिगाड़ी, मैं बैठा रहा, एक्सरसाइज नहीं करी और खाता गया, मोटा हो गया। आई विल बी ऑल राइट प्रोबेबली फॉर सम टाइम, बट नॉट माई चाइल्ड, नॉट माई ग्रैंड चाइल्ड। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो जो आज हेल्दी हैं उनको अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर, आई थिंक दिस वाज एन आई ओपनर हमारे सभी श्रोताओं के लिए एंड फॉर मी माई सेल्फ एज वेल। आई थिंक दिस वाज वेरी वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सर। Dr. Kapil ji, I'd like to ask you, during the corona period, everyone was talking about liver. Liver is very important. We have to keep our immune system healthy, so look after the liver. So what is the role of liver and immunity? ऐसा कोई संबंध है क्या? जी जी। सो जैसे आपने बोला कि सब इसमें बड़ा कोरोना के टाइम में इट वाज वेरी इन डिस्कशन कि व्हाई लिवर शुड बी केप्ट हेल्दी। सो लिवर प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स एंड इम्यूनो व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स व्हिच हेल्प इन मेंटेनिंग इम्यूनिटी। सो लिवर में ऐसे प्रोटीन बनते हैं या वो जो हेल्प करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन करने में, जो कि हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। तो इसलिए जब लिवर डिजीज व्हाट वी prescribe or what we see in our patient, जो liver disease patient हैं, जिनको liver disease है, they are very prone to develop infections. Similarly, in patients who have other diseases but साथ में liver disease भी है, तो उन patients में हम देखते हैं कि liver बाकी infection problem बहुत common होता है. So that's why, because liver has factors which produces immunity in form of proteins as well as immunoglobulins, which are required for sustaining the immunity. Thank you. Thank you. And is there any role of liver in in various diseases, let's say related to reproduction और इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेन? बिकॉज अक्सर लोगों को जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग बोलते हैं अरे तो लगता है लीवर खराब हो गया, लीवर कमजोर हो गया। सो इज देयर एनी एसोसिएशन? Yes, yes. Patients who have advanced liver disease like cirrhosis, so in them the testosterone level goes down, and one of the marker of what we can see is systemic. What we see is the testicular atrophy. So the testicular volume goes down, the testicular production goes down, and so goes the male libido, and they develop other manifestations like they develop gynecomastia, then they develop testicular atrophy as well as erectile dysfunction. So this is very common. But it happens in advanced liver disease. If patients have associated alcohol intake and smoking, so that can be the cause. And when the patients develop advanced liver disease, the chances of developing erectile dysfunction and other male problems are very common. Thank you. I would just like to go back to one thing which I think is very, very important, is extremely important, is rampant in our country, but we did not discuss that. That is hepatitis B and hepatitis C. सर थोड़े से शब्दों में हमें इन दोनों के बारे में बताइए, ये क्या है, इससे क्या होता है, सिम्टम क्या होते हैं, इलाज कराना क्यों और कैसे जरूरी है? आई नो दिस इज अ बिग क्वेश्चन, but because our viewers must know the importance of this, because कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज हो सकता है और गलत फहमी में आके लोग नहीं कराते। सर पहले तो मैं जो डॉक्टर कपिल ने कहा उसमें थोड़ा सा ऐड करूं कि अगर लिवर में फैट या ओबेसिटी है तो कोविड से उसमें दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो कोविड सीवियर ज़्यादा होगा इन लोगों में, क्योंकि ये सारे लोगों में जनरली डायबिटीज़ या ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी कोमॉर्बिडिटी फैटी लिवर है, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर से। दूसरा, वैक्सीन का असर भी ऐसे लोगों में जिनमें फैटी लिवर है थोड़ा सा कम हो सकता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं या ओवरवेट या ओबीज हैं या फैटी लिवर है तो आप ज़रूर से बूस्टर
ले लें, क्योंकि इम्यूनिटी इसमें जल्दी कोविड की कम हो जाती है। कमिंग टू हेपेटाइटिस बी और सी, ये हमारी 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियों में छोटी उंगली हेपेटाइटिस ए, जो भोजन और पानी से जाती है, और ये हम जो है हेपेटाइटिस ई, ए बी सी डी ई, ये भी भोजन और पानी से जाता है। तो ए और ई दोनों भोजन और पानी से जाते हैं। आपने दूषित खाना खाया या पानी पिया, आपने खुले फल वगैरह ऐसे ले लिए, तो हो सकता है दूसरे व्यक्ति में भोजन और पानी से चले जाएं, जैसे बैक्टीरिया भी जाते हैं। और फिर बीच के अंदर है हेपेटाइटिस बी, सी और डी। तो ए के बाद में बी आया, सी आया और डी आया। बी, सी और डी ये ब्लड से जाते हैं। आपके शरीर से अगर ब्लड, प्लाज्मा, सिक्रीशन, सीमन दूसरे में गया तो ये ट्रांसमिट हो जाते हैं वायरस। और अगर हेपेटाइटिस बी को लें तो माँ से बच्चे में खून जाता ही है जब बच्चा पेट में होता है। तो अगर माँ पॉजिटिव है तो बच्चे खून के द्वारा फीटस के अंदर भी हेपेटाइटिस बी चला जाता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस बी मिल जाता है बिना बच्चे को पता हुए, और वो जिंदगी भर इसको बी को लिए चलता है, क्योंकि कोई लक्षण नहीं आएंगे, क्योंकि जो चीज़ माँ से मिलती है बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई ये तो अपना ही है। नाक कान गला अच्छा मिला तो वायरस साथ में आ गया। जब 20 साल का हुआ, 30 साल का होता है आदमी, स्कूल में जाता है, तब पता लगता अरे हेपेटाइटिस बी है, पर मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप हेल्दी होंगे, आपके अंदर बीमारी नहीं होगी, बट ये वायरस चुपचाप शरीर में रहता है। एंड आफ्टर सम टाइम, किसी को 20 साल में, किसी को 40 साल में, धीरे धीरे लिवर की डिजीज होने लग जाती है। उसके अंदर लिवर सूख जाए, पैरों पे सूजन आ जाए, पेट पे आ जाए, देन दिस इज एन एडवांस डिजीज। तो प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड डिजीज 10% लोगों में करीब डिजीज होती है, 90% में साइलेंट क्वाइट रहते हैं। पर अगर पता लग जाए तो इग्नोर ना करें, आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं और हेपेटाइटिस बी के लिए जरूर अपने रिपीटेड टेस्ट, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस कराएं। इसके अंदर 10% में से करीब 1% लोग हेपेटाइटिस बी से उनकी डेथ होती है। अगर जैसे पूरी दुनिया में 270 मिलियन लोगों को हेपेटाइटिस बी है, भारत में भी करीब करीब 30 से 40 मिलियन, 3-4 करोड़ को हेपेटाइटिस बी है। तो ऐसा अंदेशा होता है कि 10% में लिवर डिजीज होगी और 1% की डेथ होगी। तो एक दिन में हेपेटाइटिस बी से जितने लोग मरते हैं एक दिन में, वो HIV से एक साल में नहीं मरते। उससे ज़्यादा एक दिन में हेपेटाइटिस बी से, लिवर कैंसर से, लिवर सिरोसिस से मरते हैं। तो हमें हेपेटाइटिस बी के बारे में जानकारी लेनी। पर अगर किसी के घर में हेपेटाइटिस बी है तो दूसरे को भी हो सकती है। माँ से मिला है, मुझे है तो भाई को भी हो सकती है। तो सारे परिवार को टेस्ट कराना है। तीसरा, अगर आप टेस्ट में नेगेटिव हैं तो वैक्सीन लगा के बचना। इसकी वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, 100%। तो सारे लोगों को जितने भारत में हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, जैसे आपने कोविड की वैक्सीन सबके लिए लगाने को कहा, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हर एक को लगानी है, चाहे किसी भी उम्र का हो। और ये वैक्सीन 100%, नियरली 99.5% इफेक्टिव है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है। हेपेटाइटिस सी जो है जनरली ब्लड से आता है। आपने टीका लगवाया था बचपन में, ये ब्लड से एक से दूसरे में जाता है। तो आपको कभी खून चढ़ा, पहले तो लोग बाजार से खून ले लेते थे कमर्शियल डोनर का, अब बड़ा टेस्टिंग से ब्लड मिलता है। तो हम किसको कहेंगे हेपेटाइटिस सी है? ध्यान रखें, 5-6 ग्रुप हैं जिनको अपना टेस्ट कराना है। अगर आपको 2001 से पहले खून चढ़ा, उस समय टेस्टिंग नहीं होती थी, आपका कोई ऑपरेशन हुआ उस समय, गायनी का, हार्ट का, ब्रेन का, कोई भी ऑपरेशन 2001 से पहले हुआ, या आपको ब्लड चढ़ा, या आप डायलिसिस पे हैं, ब्लड बार बार आपको लगा सकते हैं, डायबिटिक्स हैं जो इंजेक्शंस लगाते रहते हैं, या ड्रग यूज़र हैं, ये सारे लोगों में हेपेटाइटिस सी का खतरा है। पर अच्छी बात यह है कि डायग्नोसिस बहुत आसान है, टेस्ट से पता लग जाता है। जैसे आप कोविड का RNA कराते हैं, RT-PCR, वही RT-PCR हेपेटाइटिस सी का होता है, उससे वायरस पता लगता है।
और 12 हफ्ते से 24 हफ्ते की दवाई में लगभग 95% लोग ठीक हो जाते हैं। पर आप अगर इलाज नहीं कराएं तो लिवर का सिरोसिस, कैंसर हो सकता है। तो बी और सी दोनों वायरसेस हैं जो लिवर में जाते हैं और क्रॉनिक रहते हैं, बॉडी निकाल नहीं पाती है और इसलिए ये डिजीज करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कपिल जी, जी सर ने अभी हेपेटाइटिस बी के बारे में बताया, वैक्सीन है। इस और भी कोई हेपेटाइटिस है जिसकी वैक्सीन है जो लगानी चाहिए? देखिए, हेपेटाइटिस बी के अलावा हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है, सी और ई की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और डी जो है वो बी के साथ ही होता है। अगर हमने बी की वैक्सीन ले ली तो इट विल टेक केयर ऑफ डी ऑल्सो। सो बी और ए की वैक्सीन अवेलेबल है, सी और ई की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बट नॉर्मली एक बार किसी को हेपेटाइटिस ई या हेपेटाइटिस ए हो गया, सो दे गेट अ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। 95% से 99% चांस है उनको दोबारा हेपेटाइटिस ए या ई, अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट रहेंगे, इम्यूनिटी ठीक रहेगी, सो दे विल इन्फेक्शन सीवियर नहीं होगा। सो दो ही इन्फेक्शन का है, ए और बी। अच्छा, हेपेटाइटिस सी या बी अगर किसी को हो जाए, खास तौर पे हेपेटाइटिस सी हो और उसका टैबलेट लेके इलाज कर दें, जी तो क्या वो दोबारा होने के चांसेस होते हैं कि वो एक बार ठीक हो जाए तो? जैसे कभी कभी लोग हेपेटाइटिस बी का इलाज कराते हैं, फिर वो सोचते हैं कि सब ठीक है, तो उन लोगों को बार बार जांच करानी जरूरी है कि एक बार इलाज हो जाए तो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं? मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, हेपेटाइटिस सी की, जैसे सर ने भी बताया कि हेपेटाइटिस सी अब क्यूरेबल है। सो हेपेटाइटिस सी की अगर हम दवाई लेंगे, पेशेंट इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, उसका लिवर ठीक है, 3 महीने की ट्रीटमेंट के बाद, 12 हफ्ते की ट्रीटमेंट के बाद 95 to 99% जो इसका लिवर ठीक है और उसका वायरस ठीक, मतलब टाइप ऑफ वायरस, क्योंकि जीनोटाइप आजकल जरूरत नहीं पड़ती, पैन जीनोटाइपिक है, दे विल गेट क्योर, उनका क्योर हो जाएगा। और मोस्टली वायरस उनका नेगेटिव हो जाएगा जो हम आरएनए से करते हैं। एंटीबॉडी पॉजिटिव रह सकती है, मतलब कुछ 5 साल 10 साल तक पॉजिटिव रह सकती है, बट आरएनए विल बी नेगेटिव। सो हमारा जो ट्रीटमेंट का एम है, टारगेट है, वो एचसीवी आरएनए है। रिकरेंस का चांस 1 से 5% है, दे विल गेट अगेन। मोस्टली अगर होगा तो इसका मतलब नया इन्फेक्शन उनको मिला है, अदरवाइज रिकरेंस का चांस कम रहता है। जबकि हेपेटाइटिस बी में ट्रीटमेंट जो है दैट इज नॉट सो मच इफेक्टिव, कि क्यूरेबल नहीं है, बट इट कैन कंट्रोल एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज ऑफ लिवर। सो इसलिए जो दवाई है वो काफ़ी लंबे तक चलती है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की स्टेज और लिवर का स्टेटस क्या है और वायरस का स्टेटस क्या है। बट ये है कि दवाई उसकी जल्दी छोड़ नहीं सकते, जबकि हेपेटाइटिस सी का लिमिटेड इलाज है। अगर आपका लिवर खराब है, सो सरोसिस है, तो 3 to 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलता है, उनका सक्सेस रेट कम हो जाता है, इट गोज डाउन टू 85 to 92%। वेरएस अगर पेशेंट का लिवर ठीक है, सो दे हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ क्योर इट। थैंक यू सर। प्रोफेसर सरीन सर, बार बार आपने भी बोला और डॉक्टर कपिल भी अभी साइरोसिस की बात कर रहे थे, तो सर ये साइरोसिस क्या होता है? जैसे आप चमड़ी पे गर्म पानी डाल दें तो जब स्कार बनता है तो लगता है अरे भाई ये तो जला हुआ है, स्कार बन गया, है ना। उसी तरीके से लिवर जब इंजरी होती है उस समय तो सूज जाता है, पर जब इंजरी रिकवर करती है या नहीं भी करती तो वो सारा एक स्कार बन जाता है। तो स्कार, हार्ड लिवर इज सिरोसिस। और जब स्कार्ड होगा तो उसमें खून ही नहीं जाएगा। आप देखें चमड़ी पे अगर कोई आपका किसी का भी जला हुआ हो तो वो खून थोड़ी जाता है सफ़ेद। तो उसी तरह उस लिवर में खून पूरा नहीं जाता, खून साफ नहीं होता और लिवर का बीपी बढ़ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का बीपी 110 और 70 है पर वो 300 हो जाए बीपी, तो बहुत टेंशन हो जाएगी कि भाई बीपी 3 गुना बढ़ गया। क्यों बढ़ा बीपी? क्योंकि आपकी आर्टरीज हार्ड हो गई। तो लिवर में क्या होता है, जब ब्लड जाता है, लिवर का प्रेशर 5 होता है, 5 मिलीमीटर। पर अगर लिवर हार्ड हो गया तो उसमें खून नहीं जाएगा और जोर लगाना पड़ेगा खून को, तो लिवर का प्रेशर 10, 15, 20 तक जा सकता है। तो जो ही लिवर का प्रेशर 10 से ऊपर हुआ तो पेट में पानी आना, खून की उल्टी का खतरा होना, बेहोशी होना। तो सिरोसिस, अगर सिरोसिस तक रहता है, अर्ली स्टेज है, तो हम लोग मैनेज बड़े आसानी से कर लेते हैं।
पर सिरोसिस की भी 4 स्टेजेस 6 स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस में पहली स्टेज में खून की उल्टी होना, उल्टी हुई मतलब लिवर का प्रेशर 16 से ऊपर हो गया, पेट में पानी आया मतलब लिवर का प्रेशर 12 से ऊपर हो गया। अगर आप देखेंगे कि हाई प्रेशर बहुत समय तक रहेगा तो उस आदमी के कैंसर लिवर का बन सकता है। तो सिरोसिस और हाई ब्लड प्रेशर इन द लिवर आर मेजर प्रॉब्लम्स। और ऐसा लिवर फिर एक बार इतना डैमेज हो जाए तो मुश्किल होता है। तो उसको बचाना ज़रूरी है, उसको मैनेज करना कि आप अपने लिवर को बचाए रखें, उसको जितने साल चला सकते हैं और जितनी अच्छी तरह उसकी कॉम्प्लिकेशन बचा सकते हैं वही सारा अगर लोग समझ लें और डॉक्टर्स भी उसमें मदद करें, आप मदद करें, तो मुझे लगता है सिरोसिस ऐसा नहीं है कि एक डेथ वारंट है कि आज आ गया तो कल मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हेल्दी अगर आदमी मेंटेन रखे अपनी लाइफस्टाइल तो सिरोसिस के साथ भी 10 साल 15 साल आराम से निकल जाते हैं। सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, इसमें ब्लीडिंग है, पेट में पानी है, जॉन्डिस है, तो भी आदमी उनको दोबारा से धीरे धीरे करके बेटर कर सकता है। न्यूट्रिशन का, दवाइयों का, कॉज ऑफ लिवर डिजीज का बड़ा रोल है। जैसे अगर बी और सी वायरस है, उनकी दवाइयाँ ले ली तो बेटर है। अगर मोटापा है आपने घटा लिया तो लिवर बेटर हो जाएगा, सिरोसिस कम हो जाएगा। शराब पी रहे थे आपने, शराब त्याग दी और उसके साथ थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह ली, तो ये सारी चीज़ें सिरोसिस को जो बढ़ाती हैं उनको रोक भी सकते हैं, धीरे धीरे रिग्रेस भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर हमारे पास बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट अक्सर ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं कि जिनको सो कॉल्ड कोई भी ऐसा मेजर रिस्क फैक्टर न रहा हो, जिनको हेपेटाइटिस ना हो, बीसी ना हो और बहुत सीवियर फैटी लिवर भी ना हो, ज़्यादा ना हो, और कभी कभी जब उन लोगों की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड होते हैं और जांचें की जाती हैं तो पता चलता है कि उनको तो उनको सायरोसिस हो रहा है, लिवर फेलियर में है। तो ऐसी क्या वजह होती है? ऐसा कुछ बीमारी ऐसी होती है क्या सर? देखिए आप बहुत एक्सपीरियंसड हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और ये बहुत बहुत कॉमन अच्छा सवाल है। मैं ये क्लियरली बताऊंगा कि डायबिटीज़ के लोग अगर 40 या 45 के हो गए तो उनमें स्टेज 2 से 3 लिवर की फाइब्रोसिस होगी। तो हर डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर उसकी बीमारी 10-15 साल की है और उम्र 40-45 की है तो लिवर का टेस्ट कराना है, क्योंकि लिवर डिजीज़ है। दूसरा, सिरोसिस का मतलब है कि स्टेज 4 की फाइब्रोसिस या स्कारिंग हो गई। मतलब सिरोसिस का मतलब स्टेज 4 का मतलब कैंसर नहीं है, मतलब लिवर के सूखने की, जैसे स्कार की स्टेज 4 स्टेज है, तो सिरोसिस इज स्टेज 4 ऑफ फाइब्रोसिस ऑफ लिवर। हम स्टेज 4 तक ना जाएं, बचे रहें। अब नॉर्मल डायबिटीज का जिसको कोई साइन सिम्टम नहीं है, ऐसे व्यक्ति के अंदर लगभग 2% लोगों में फुल ब्लोन सिरोसिस होता है। और जैसे जैसे डायबिटीज के साथ और प्रॉब्लम, मोटापा आ गया, इनएक्टिविटी आ गई, आप बैठे रहे, तो ये प्रोपोर्शन 5%। ऐसे लोगों में जिनको डायबिटीज है, लिवर कैंसर करीब 2.5 गुना ज़्यादा होता है। अगर डायबिटीज है तो सिरोसिस 2.5 से 3 गुना ज़्यादा है जनरल पॉपुलेशन के। तो मेरा विचार ये है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट आप देखते हैं या और हमारे साथी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखते हैं, हर डायबिटिक पेशेंट को लिवर टेस्ट करना, लिवर की जांच कराना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। ये सारी गाइडलाइंस में, जो एंडोक्राइन की गाइडलाइंस अमेरिका ने 2021 की, उसमें भी ये आ गया है कि अब आप अपना लिवर टेस्ट ज़रूर से कराएं। तीसरा, डायबिटीज़ के पेशेंट जिनमें लिवर के एंजाइम्स हाई हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाइना की एक स्टडी है, करीब 9 लाख पेशेंट्स की डायबिटिक के। तो जिन पेशेंट्स का डायबिटीज़ था और उनका SGOT PT हाई था, ऐसे लोगों में लिवर कैंसर 70% ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रहे कि डायबिटीज़ के पेशेंट में लिवर के एंजाइम्स बराबर मॉनिटर किए जाए, आपकी दवाइयों से या और किसी कारण से। तो लिवर का फाइब्रोसिस, लिवर के एंजाइम्स हर डायबिटिक के मरीज में देखे जाएं। और मेरे विचार से ऐसे ड्रग्स, जो सबसे अच्छी ड्रग है वो मेटफॉर्मिन है, जो आप लोग यूज़ करते हैं, बेसिक ड्रग,
ये लिवर का फाइब्रोसिस कम करती है, लिवर के एंजाइम्स कम करती है, लिवर कैंसर से भी इसके अंदर थोड़ा सा फायदा रहता है। थैंक यू सर, ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल की बात कही। कपिल जी, थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे? सर ने टेस्ट के बारे में बात किया, तो कुछ खास स्पेशल टेस्ट होते हैं, कौन कौन से टेस्ट कब कराने चाहिए? प्लीज टेल आवर व्यूअर्स। देखिए वही है, सर ने बताया कि 70% ऑफ डायबिटीज दे हैव फैटी लिवर। तो जिसको भी डायबिटीज 10-15 साल से है, फैटी लिवर उसको हुआ ही होगा। सो उन पेशेंट्स में जो स्पेसिफिक टेस्ट है, वी वुड रिकमेंड एक इलास्टोग्राफी होती है, लिवर इलास्टोग्राफी, विच विल असेस लिवर की स्टिफनेस कैसी है, प्लस इट विल असेस अ फैट ऑल्सो। सो दोनों टेस्ट हो सकते हैं। फिर डिफरेंट मशीन्स हैं जो इंडिया में पॉपुलरली अवेलेबल, एक फाइब्रोस्कैन है और एक फाइब्रो टच है, बोथ आर अवेलेबल। सो ये हमें एक दे देता है कि स्टिफनेस कितनी है। सो जिसका सपोज नॉर्मल स्टिफनेस इज लेस देन 6, इसकी लिवर स्टिफनेस हम टेस्ट करेंगे। 10 मिनट का टेस्ट है, तो 10 रीडिंग लेगा एंड इट विल गिव यू रिपोर्ट बाय हैंड ओनली। सो अगर उसमें आता है कि आपकी स्टिफनेस 6 से कम है, दैट मीन्स योर लिवर इज ओके। बट अगर वो अप टू 10 है, सो मे बी ग्रेड 1 फाइब्रोसिस हो चुका है। और अगर 10 to 20 है, सो ग्रेड 2 ग्रेड 3 फाइब्रोसिस है। और 25 के ऊपर, 24 के ऊपर सो सरोसिस माना जाता है। तो वी विल फाइंड पेशेंट्स हु आर एसिम्प्टोमेटिक, जैसे आपने बताया, भले चंगे हैं बट गए ओपीडी में टेस्ट किया और पता लगा कि लिवर ऑल्टर्ड है, अल्ट्रासाउंड में इरेगुलर स्ट्रक्चर है, लिवर इज नॉट रेगुलर, वो स्मूथ नहीं रहा है, प्लस स्प्लीन लार्ज हो गया है और वेन भी डायलेट हो गई है, एंड देन वी डू अ इलास्टोग्राफी टू कंफर्म वो है। तो ये सिंपल टेस्ट है विच इज नॉन इन्वेसिव, हर जगह अवेलेबल है और हमें बड़ा अच्छा आंसर दे देता है। बाकी कोई नॉन इन्वेसिव टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी हैं, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक लैब्स के हैं, उनको इलास्टोग्राफी, इलास्टोमीटर कहते हैं, वो करते हैं। बट द इजीली मोस्ट कॉमन अवेलेबल एंड which is to the reach of common public is a simple elastography. थैंक यू सर। सर, एक चीज मैंने बहुत देखी है प्रैक्टिस में भी, कि अक्सर लोग आते हैं कि उनको पेट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सो पीपल हैव दिस कंसेप्शन कि हमारा लिवर खराब है, सो लिवर का टॉनिक लेते हैं। एंड आई थिंक लिटरली एवरी अदर पर्सन इन इंडिया इज टेकिंग सम लिवर टॉनिक और अदर। सो सर, व्हाट हार्म और गुड डज दैट डू? डॉक्टर कपिल ने जो कहा उसमें मैं थोड़ा सा एक और सिंपल चीज़ ऐड करूंगा, जी वो प्लेटलेट काउंट है। तो जी अगर किसी का प्लेटलेट जैसे पहले 1,50,000 था, 1,20,000 हो गया या लाख से कम हो गया, तो लोग हेमेटोलॉजिस्ट के पास, खून वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर ऐसे लोगों को भी चाहिए कि अगर प्लेटलेट कम हो रहा है तो फाइब्रो स्कैन या फाइब्रो टच कराएं, इलास्टोग्राफी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मार्कर है लिवर डिजीज़ का। प्लेटलेट कम होना एक लिवर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। और अब जैसे कोई लिवर टॉनिक की बात आप कर रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छा लिवर टॉनिक मिल जाए। लिवर का टॉनिक जो है, लिवर का टॉनिक जो है ना, वो बड़ा अच्छा, बड़ा इम्प्रेसिव वर्ड है, पर टॉनिक्स नहीं है। हाँ, लिवर को किस तरह से आप रीजेनरेट कर सकते हैं या लिवर को किस तरह हेल्दी रख सकते हैं, मैं कहूँगा कि लोगों को लिवर टॉनिक लेने के बजाय या लिवर की ऐसी दवाइयाँ लेने के बजाय ध्यान रखना कि कई दवाइयाँ इनमें से नुकसान भी कर सकती हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आपका हेल्दी डाइट हो जिसमें कलर्ड वेजिटेबल्स हों, 60 to 70% फूड इज़ अनकुक्ड। जो चीज़ भारत के अंदर दिनचर्या में आती थी वो बहुत अच्छी थी, किस समय खाना है, क्या खाना है, कितनी बड़ी प्लेट होगी, उसमें कितना डालेंगे, एक ही सर्विंग लेंगे। और एक जैन या जो इस तरह से लोग बहुत अच्छा करते थे कि सूर्यास्त के बाद नहीं लेंगे, सूर्योदय से पहले नहीं लेंगे। ये सारे चीज़ें अगर हम अपने उसमें डालें और लिवर टॉनिक को ढूंढने के बजाय ये देखें कि जो चीज़ें लिवर को हार्म कर रही हैं, क्योंकि लिवर नेवर एजेस। आपके बाल भले ही सफ़ेद हो जाएं, दांत भले ही गिर जाएं, पर लिवर कैन बी गिवन इवन एट 80। ए हेल्दी लिवर, किसी की डेथ हो तो उसका लिवर 80 साल वाला भी लिवर जो है वो किसी और को बहुत अच्छे से बचा सकता है। तो लिवर डज नॉट एज अनलेस इट इज़ फैटी, अनलेस इट हैज़ बीन डैमेज्ड बाय अल्कोहल, दैट लिवर इज़ गुड। तो कमिंग बैक कि लिवर टॉनिक जो है
ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, भूखे रहना बहुत अच्छा लिवर टॉनिक है। आप अगर फास्ट कर सकें, बहुत अच्छा टॉनिक। दूसरा टॉनिक है कि आप भोजन सेम भोजन करें बार बार, आप उसको डेली चेंज। आज आप हर रोज़ पार्टी में जाएंगे, आपके बैक्टीरिया चेंज होंगे, आपका गट का एनवायरनमेंट चेंज होगा, वो लिवर डैमेज करेगा। तो डोंट डैमेज लिवर, जस्ट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज, फ्रॉम इंसल्ट्स। दैट इज द बिगेस्ट लिवर टॉनिक। Thank you, sir. I think that was a very important message. And continuing this, I was reading a recent statement from WHO that no amount of alcohol is permissible, is allowable. So even a very small amount of alcohol can start the process of cancer. So is this true, sir? Yes, this is very true, because अगर अल्कोहल के अमाउंट से लें तो हर आदमी के लिए वो डोज अलग अलग होगी। और इसीलिए ये जो लैंसेट की स्टडी, फेमस स्टडी जो WHO ने और सब ने पब्लिश की थी, उसमें यही था कि भाई नो अमाउंट इज सेफ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले हम लोग हेपेटाइटिस बी, सी या इवन मोटापे से, डायबिटीज से लिवर कैंसर देखते थे, पर यूरोप में 54% ऑफ कैंसर्स आर ड्यू टू अल्कोहल। एंड द रीजन क्या है, क्यों अल्कोहल हैज बिकम नंबर 1 कॉज इन यूरोप फॉर लिवर कैंसर, इज बिकॉज पीपल थॉट कि भाई अल्कोहल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चाहे तो अब हर कंट्री में यूरोप में धीरे धीरे अल्कोहल का अमाउंट कम होता जा रहा है। पीपल थॉट कि हम ये रेड वाइन लेंगे या हम ये चीज़ बियर लेंगे, ये तो अल्कोहल है ही नहीं, पर बियर, रेड वाइन, दे ऑल एडिट। और वही चीज़, चाहे आप ध्यान करें कि हमारे यहाँ सत्तू पीना या कांजी पीना बड़े कॉमन होते थे। कांजी और सत्तू एक तरह से इंडिजिनस फॉर्म्स ऑफ गुड हेल्दी ड्रिंक्स हैं, पर ये अल्कोहल नहीं है। पर अगर आप उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करके लेंगे तो हार्मफुल है। तो ये बिल्कुल सही है कि नो अमाउंट इज सेफ, स्पेशली इन 4 कैटेगरीज। पहला, प्रेग्नेंट वुमेन, अगर आपको पता नहीं कि बच्चा है या नहीं है, लेडी है, यंग, अल्कोहल टू बी अवॉइडेड। सेकंड, अगर आप डायबिटिक, ओवरवेट या ओबीज हैं, नो अमाउंट इज सेफ। थर्ड, अगर आप ड्रग्स लेते हैं कोई सी भी, जैसे पेन किलर्स लेते हैं, ऐसे सारे लोगों में जो आप 2 ग्राम 1 ग्राम पैरासीटामोल हम और आप हजम कर सकते हैं, पर कोई ड्रिंक्स ले रहा हो तो वही अमाउंट बहुत सीरियस है। तो थर्ड कैटेगरी, नो anybody who is taking paracetamol or such drugs, alcohol should not be taken. And fourth, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं कि साहब मुझे नींद नहीं आती है, और अल्कोहल आप ले रहे हैं जिसको ये पता नहीं है कि मेरे को जॉन्डिस हो गया है या और कोई बीमारी है, तो अल्कोहल इज हार्मफुल। तो WHO का स्टेटमेंट क्लियर है कि नो अमाउंट इज सेफ, कीप योर सेल्फ अवे एंड ड्रिंक ओकेजनली। इट इज बेटर टू सर्व टू समबडी देन टू ड्रिंक योर हेल्थ। Thank you, sir. Dr. Kapil, sir, sir was so about liver failure. Now we are hearing a lot, just like we are hearing about knee transplant, kidney transplant. We are hearing about liver transplant also. So who requires a liver transplant? And in few words, how is it done? So that our audience has just as an idea. ठीक है, सो मैं बताता हूँ कि लिवर ट्रांसप्लांट के टाइप क्या हैं। सो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। वन इज लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि एक लाइव डोनर जो कि ब्लड रिलेटेड या रिलेटेड टू द रेसिपिएंट है, वो अपना लिवर देता है। हम टेस्टिंग करके देखते हैं कितना लिवर रिक्वायर्ड है और क्या डोनर दे पाएगा नहीं दे पाएगा, उसको लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं DDLT, डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि कैडावरिक, जो कि एक इसने डोनेट किया हो, उससे हम लिवर लेके पूरा का पूरा लिवर लेके लगा लेते हैं। जबकि लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में पार्ट ऑफ लिवर लेते हैं, जो कि लिवर हैज अ वेरी गुड कैपेसिटी टू रीजनरेट, सो दैट्स व्हाई द रेसिपिएंट विल आल्सो रीजनरेट एंड द डोनर जिसने दिया है वो भी रीजनरेट कर लेता है। सो दैट इज लाइव डोनर एंड कैडावरिक डोनर और डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट।
coming to indications of liver transplants, the most common indication which you discussed, जो आपने बताया, liver failure है. So liver failure में main दो type है, acute liver failure, जैसे किसी patient को toxin, जैसे rat poisoning is the most common cause of liver failure in South India. So किसी ने rat poisoning खा लिया suicidal के लिए and they go into liver failure. So that requires urgent liver transplant for acute liver failure. So that is one indication. Other indication like किसी ने पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो गई या फिर हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन हो गया, जैसे प्रेगनेंसी और हेपेटाइटिस ई है, सो दे डेवलप अ वेरी acute form of liver failure. The second type is chronic liver disease. अब chronic liver disease में कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण जो इंडिया में है वो अल्कोहल है, अल्कोहल रिलेटेड chronic liver disease और alcohol related acute on chronic liver failure. जैसे किसी को पता नहीं है, अल्कोहल पीता रहा, सडनली उसका लिवर बैठ गया, जैसे बैठ गया मतलब कि he developed jaundice as well as features of liver failure, ascites, बेहोशी, खून पतला हो गया. So in those condition, जैसे acute on chronic liver failure है, उस condition में पेशेंट वेट नहीं कर सकता एंड ही में रिक्वायर थोड़ा सेमी अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट. और तीसरा जो मोस्ट कॉमन होता है वो है क्रॉनिक लिवर डिजीज, जैसे आस्ता आस्ता पेशेंट का लिवर खराब हुआ, जैसे मोटापा है, ओबेसिटी रिलेटेड, और पेशेंट जैसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ओवर द टाइम दे डेवलप सरोसिस होता है और कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं. लेकिन कॉम्प्लिकेशन होने के बाद अब पेशेंट आया जिसका सिर्फ अर्ली सरोसिस है, he or she may not require a transplant जब तक उसको liver related complication which are not sustenance with normal life without transplant, उसी patient में हम transplant करेंगे. So these are the main indications: acute and chronic liver disease and types of liver and causes of liver failure. Okay, thank you sir. Sir, पिछली बार आपने हमें बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीज बताई थी about artificial liver. So has there been any progress with that, Professor Sareen sir? बायो आर्टिफिशियल लिवर के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है. इसके 4 तरीके हैं. बायो आर्टिफिशियल लिवर का मतलब है कि आप आर्टिफिशियली लिवर के कुछ सेल्स किसी एक सब्सटेंस में डालें और लिवर का काम वहाँ पे बाहर हो जाए. तो बायो आर्टिफिशियल लिवर को अब जैसे 3D प्रिंटिंग आ गई है, तो हम एक एक लेयर, लिवर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेल्स होते हैं, तो हम लेयर बाय लेयर उसको डाल सकते हैं. और हम लोगों ने भी बायो आर्टिफिशियल लिवर में थोड़ा बहुत काम किया था IIT कानपुर के साथ. वहाँ बायो आर्टिफिशियल हार्ट के लिए भी काम चल रहा है. तो उसी तरह बायो आर्टिफिशियल लिवर में भी थोड़ा बहुत काम हो सकता है, पर ये अभी तक एनिमल्स में रहा, ह्यूमन बींग्स में इसका अभी यूज़ नहीं हुआ. दूसरा तरीका है जो आपने देखा होगा कि हाँ, पिग का हार्ट, सुअर का हार्ट आदमी में लगाया, वहाँ ट्रांसप्लांट हो गया, वो थोड़े दिन जिंदा रहा. तो उसी तरीके से आप अब पिग में ह्यूमन लिवर को ग्रो कर सकते हैं. दीज आर कॉल्ड ह्यूमनाइज्ड पिग्स. तो कुछ एंजाइम्स जो हैं, हम उनके अंदर, पिग्स के अंदर जीन्स को हम लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं, साइलेंस. तो पिग का लिवर जब हमारे बॉडी में आएगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर आएगा, तो उसके अंदर सक्सेस है. तो अभी 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स इसी लेट दिसंबर में हुए हैं कि जो पेशेंट जिनकी डेथ हो गई थी, उनके अंदर ब्रेन डेड थे पर बॉडी चल रही थी, उसमें उन्होंने, और लिवर फेलियर था, उसमें पिग का लिवर लगाया, और पिग के लिवर लगाने के बाद में करीब 60 घंटे तक वो आदमी का लिवर का काम करते रहे. तो अभी बायो आर्टिफिशियल लिवर की शुरुआत है, बहुत काम हो रहा है, जापान में हो रहा है, बट वी आर नॉट देयर. मे बी अनदर 10 years वी शुड हैव समथिंग, बट टिल देन लिवर सपोर्ट सिस्टम्स आर अवेलेबल. जो लिवर के कारण है, अमोनिया निकालना है, यूरिया साफ करना है, खून का साफ करना है, वो सारे लिवर डायलिसिस के अंदर आते हैं. ILBS में भी और कुछ जगह पर भी हो सकता है. लिवर डायलिसिस जैसे किडनी डायलिसिस है, लिवर डायलिसिस की सुविधा है, which can tide over the emergencies before actual transplant takes place. Thank you, sir. I think that was very, very informative for all of us. So, few small more things. एक the role of tea and coffee, because अक्सर लोगों में भ्रम होता है कि चाय कॉफी से बहुत नुकसान होता है हमारे लिवर का. प्लीज थोड़ा एलैबोरेट करिए. कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है लिवर के लिए. लिवर से फैट को निकालती है, लिवर कैंसर को कम करती है, लिवर के सिरोसिस को कम करती है. कॉफ़ी में एक कंपाउंड होता है जो कि एक एंजाइम को सप्रेस करता है, फॉस्फोडाइस्टरेज को.
उसके कारण लिवर के अंदर से फैट क्लियर हो जाती है। तो कॉफ़ी पर ये नहीं कि आप 4 चम्मच चीनी डालें और 2 गिलास दूध डालें फिर कॉफ़ी बनाएं, ऐसा नहीं। कॉफ़ी विथ मिनिमम शुगर और मे बी मिनिमम मिल्क इज़ गुड एंड यू कैन टेक अप टू 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी। टी के बारे में भी, ग्रीन टी के बारे में थोड़ा बहुत डेटा है कि इट कैन हेल्प, बट इट इज़ नॉट कन्विंसिंग। तो बट इट इज़ नॉट हार्मफुल टू टेक, बट कॉफ़ी इज़ बेनिफिशियल। हमारे सारे जर्नल्स में, साइंस में कॉफ़ी को काफ़ी महत्व दिया गया है। सिमिलरली टर्मरिक है, हल्दी है, वो बहुत बेनिफिशियल है लिवर के लिए। और अखरोट, करीब 40 ग्राम तक अखरोट रिकमेंडेड हैं, जो कि हाई सोर्स हैं हमारे जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और उनके लिए। तो ये तीनों चीज़ें, कॉफ़ी और अखरोट और हल्दी, लिवर के लिए बेनिफिशियल है। ऐसे कोई स्पेसिफिक कुकिंग ऑयल आप रिकमेंड करना चाहेंगे फॉर डेली यूज इन आवर किचन्स? देखिए, हम लोग सारे मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करते हैं जिसके अंदर ओलिव ऑयल है, पर मैं कहूँगा सरसों का तेल उससे कम नहीं। ऑलिव ऑयल बड़ा महंगा होता है और सरसों का तेल काफ़ी अच्छा होता है। उसके अंदर वो सारे गुण हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और लोगों के मन में भ्रम है कि साहब हम मक्खन खा लें या घी खा लें तो लिवर बिगड़ जाएगा। सारे मरीजों में बंद कर देते हैं, घी बंद है, तेल बंद है, बट वो गलत है। नॉर्मल सैचुरेटेड फैट आपका जो घी है, आपका मक्खन है, वो आप बराबर ले सकते हैं। चाहे जॉन्डिस हो, ऐसे मरीजों में भी घी और बटर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, अनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो, रुकावट हो। तो कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल हम लोगों के, सब साधारण लोगों के लिए ठीक है। हाँ, आप खर्चते हैं तो ऑलिव ऑयल अच्छा है। सर, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, बिकॉज एज आई स्टार्टेड कि NAFLD is rampant in our practice. So what should be our recommendations to patients who have this fatty liver? कि वो क्या खाएं और एक्सरसाइज करें, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा कि नहीं? NAFLD में पहले तो आप ये देखें कि आपको खानदानी तो नहीं है। अगर खानदानी है तो बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि देन यू आर ए हाई रिस्क। ऐसे लोगों के लिए वेट जितना होना चाहिए, हाइट -100 इज़ योर वेट। अगर 170 सेंटीमीटर है तो वजन 70, पर खानदानी है तो उसमें 105 कर दें। दूसरा, फैटी लिवर जो है किस किस को हो सकता, बहुत साधारण भाषा में, जो मोटे हैं, ओबीज हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है, जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, और जिन लोगों के घर में कोई कैंसर है, इन सारे लोगों को फैट का टेस्ट कराना है। खाने में 60% नेचुरल अनकुक्ड फूड होना चाहिए, और अगर आप 40 से ऊपर हैं तो कोशिश करें एक ही बार खाएं, शाम को या दिन में। ट्राई टू हैव लॉन्गर आवर्स ऑफ फास्टिंग, एंड ऑफ कोर्स जितनी कलर्ड वेजिटेबल्स हैं वो ले। पर वेट इज़ द बिगेस्ट सिंगल ड्राइवर। और हाँ, ड्रिंक्स जो हैं ऑफर करें, खुद पे प्रयोग ना करें। थैंक यू। एंड एनी रोल ऑफ एक्सरसाइज कि Yes. एक्सरसाइज से सर? एक्सरसाइज का बहुत बहुत रोल है इसमें, स्पेशली लिवर के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप मसल्स वापस बना सकते हैं, रीजेनरेट कर सकते हैं, तो लिवर रीजेनरेट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मसल लॉस जो है वो लिवर के पेशेंट्स में होता है। तो अगर एक्सरसाइज आदमी करता है तो वो लिवर डिजीज से बच भी सकता है, रिकवर कर सकता है। हेल्दी पर्सन जो फैटी लिवर वाला है, उसको 2 तरह की एक्सरसाइज करनी है, एक एरोबिक और दूसरा रेजिस्टेंस, दोनों एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज की डेफिनेशन है कि आप पसीना आए उसके बाद 45 मिनट्स, मतलब वार्म अप इज़ नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट तभी होती है जब पसीना आ रहा हो। और अगर आप एक्सरसाइज डेली करते हैं, अगर वेट कम नहीं भी होता है तो भी आपके फैटी लिवर में बहुत फ़ायदा होता है। वेट कम हो जाए, अगर किसी का 10% वेट कम हो जाए और एक्सरसाइज करे, तो लगभग लिवर का फाइब्रोसिस, लिवर की फैट दोनों कम हो जाए। 7% वेट घट जाए और एक्सरसाइज करे तो फैट तो लिवर से क्लियर हो जाती है। तो रिमेंबर, यू लूज 7 to 10% ऑफ वेट एंड एक्सरसाइज एंड यू कैन बी योर ओन डॉक्टर। वंडरफुल, वंडरफुल। आई एम सो थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, एंड आई एम श्योर आवर ऑडियंस हैज लर्नड अ लॉट एंड दे वुड keep following
your recommendations, your instructions, and they're going to be healthy. At the end, I would request both of you to give a message to our audience, and I would start with you, Dr. Kapil. So, message is कि liver is very important. We have to take care of liver. और जैसे सर ने बताया कि I think the previous what we were following previously जो हमारे पुरख follow कर रहे थे fasting. I think the fasting is most important. If you do fasting, there are a lot of data which helps in improvement of liver. It will help in improvement in your overall body condition. बीमारी कम होगी. Or it has shown that if fasting is done regularly, chances of cancer and developing other complications are high. So I think the अच्छा खाना और अच्छी exercise or fasting. I think this is must. Thank You you, don't sir. require any other tonic more than that. Thank you. सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं कहूँगा कि लिव फॉर योर ग्रैंड चाइल्ड और हेल्दी लिवर, हेल्दी चाइल्ड, हेल्दी लिवर, healthy India, healthy world. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And I'm so grateful to both of you. And on behalf of Shri Anil Rajput ji, unfortunately, he couldn't join us, but he's extremely grateful, and especially to you, Professor Sareen sir. We all know that you are so busy. उसके बावजूद आप हमारे हर कार्यक्रम के लिए समय निकाल लेते हैं. We are so very thankful to you, and we are thankful to you, Dr. Kapil Jambal, as well. Thanks for joining us and for imparting so much knowledge to our audience. And I'd like to thank Richa, Sanjeev Jain ji, and the whole team SOCHM for organizing this webinar, bringing us all together. Thank you so much. Namaskar and Jai Hind.